Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 2 of antibiotic resistance. Lecture number 1 is about overview of antibiotic resistance, and this is lecture number 2, and it is about antibiotics. What are the antibiotics? What are their origin? And what are the classification and types of the antibiotics? So first of all, antibiotics. These are the substances which are produced by various species of microbes such as bacteria and fungi, actinomycetes, to suppress the growth of other microbes and to destroy them. मतलब कि वो सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि बाकी माइक्रोब्स की एक्टिविटी को या तो स्टॉप कर दें, उनको सप्रेस कर दें, इनहिबिट कर दें, या तो उनको किल कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें. The term antibiotics extend to include some synthetic antibacterial agents such as sulfonamides and quinolone. अब जो टर्म एंटीबायोटिक है ये नेचुरली जो प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन अब हम इनको लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज भी कर रहे हैं और उनको हम लोग सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास सल्फोनामाइड्स एंड क्विनोलोन आते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डू एंटीबायोटिक्स कम फ्रॉम. Several species of fungi, including Penicillium and Cephalosporin, produces some antibiotics such as penicillin and cephalosporin. Some Actinomyces, gram-positive filamentous bacteria, and Bacillus species also produce these antibiotics, and also gram-negative bacteria also produce these antibiotics. Now, new sources have also been explored, such as some plants, herbs, fishes etc. They can also produce these substances. जैसे कि आपने देखा होगा मुस्वाक हो गई, या हम लोग एक जड़ी बूटी यूज़ करते हैं, संबल यूज़ करते हैं, मुस्वाक यूज़ करते हैं, तो इन सब के अंदर भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होते हैं या एंटी माइक्रोबियल इन नेचर होते हैं. तो दीज आर द सोर्सेस जहाँ से हम लोग एंटीबायोटिक्स को हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट आप एक टेबल देख सकते हैं. एक टेबल है जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, सोर्सेज हैं और एंटीबायोटिक्स के नेम्स हैं. जैसे कि फंगस है, फंजाई में हमारे पास पेनिसिलियम ग्रासियोजिनम है जो कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलियम ग्रासियोफल्वन जो कि ग्रासियोफल्वन प्रोड्यूस करता है, सेफेलोस्पोरियम स्पीशीज़ जो कि सेफेलोस्पोरिन प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा बैक्टीरिया में जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हैं बेसिलस की जो कि बेसिट्रेस एंड पॉलीमैक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, माइकोस्पोरा परपेरा जो कि जेंटामाइसिन की प्रोडक्शन करता है. इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिस की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वेंकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह की प्रोडक्शन करते हैं. तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं डिफरेंट माइक्रोब्स की कि कौन कौन से माइक्रोब्स हैं और वो कौन कौन सी. If we talk about classification of antimicrobial agents, so there are different factors which can be used to classify these microbes. Number one is it is based on the chemical structure. On the basis of chemical structure, we have beta-lactam antibiotics or enzyme linked antibiotics, or we can say that the precursors linked antibiotics. So this type of classification is based on the chemical structure. And on the basis of target organism, we have antiviral drugs or antibacterial drugs, antifungal drugs, and antiparasitic drugs. If we talk about on the antimicrobial activity, which type of activity they perform, so there are two types. Some bacteria are bactericidal in nature, that they can kill the microbes, or some are bacteriostatic that inhibit the growth of microbes. And last but not the least, another criteria is the spectrum of activity, that some drugs are narrow spectrum and some are broad spectrum. Narrow spectrum means these antibiotics are active against few microbes, while broad spectrum means they are active against different kinds of microbes such as gram positive, gram negative, as well as some anaerobes. So that kind of activity is termed as broad spectrum activity. Also, there are some antibiotics which are both antibacterial plus antiparasitic, such as sulfonamides and metronidazole. They can be both antibacterial and antiparasitic. So there are some parameters of classification of antimicrobials. If we look at bactericidal versus bacteriostatic drugs,
So bactericidal drugs are those drugs which we already know. These drugs kill the microbes, and they are recommended in some severe conditions such as life-threatening conditions where the immune system is unable to remove the bacteria, or we can give these drugs to immunocompromised patients those patients whose immune system does not able to fight alone, so we give them bactericidal drugs. Some drugs may be bactericidal or bacteriostatic, and it depends upon several factors such as what is the concentration of the drug, because some drug in some concentration they act as bacteriostatic, and in some concentration they act as bactericidal. Another factor is the presence of other drugs. Which drugs are present, such as I think you are familiar with the term of synergism, in which two or more drugs are used to enhance the effect of the drugs. So, and also it depends upon the which type of bacterial species present. So these are the factors in which some drugs may act as bacteriostatic and some drugs may act as bactericidal. Here is a graph. You can see that the red line show the bacteriostatic, and black line show bactericidal drug. Red line or bacteriostatic drug, here you can see that it inhibits the growth. The growth of microbe is inhibited, and it's shown on y-axis. That it shows a straight horizontal line, which show that it inhibits the growth. But in bactericidal, the number of bacteria decreases as it kills the microbes. So this is a graph which can differentiate between bacteriostatic and bactericidal drugs. Now if we talk about mechanism of action of antimicrobial drugs, तो बैक्टीरिया के केस में या किसी माइक्रोब के केस में हम उनके mechanism of action की बेस पर अगर हम उनको डिवाइड करें तो we can say that there are 5 classes of antibacterial agents, and there are those drugs which inhibit cell wall synthesis, those which inhibit cell membrane functions, those which inhibit protein synthesis, those which inhibit DNA and RNA synthesis, and those which inhibit metabolic process of microbes. Here you can see the diagram of bacteria and different drugs which act on different sites. First of all, you look at the outermost boundary, which is the cell wall, and there is the name of the drugs such as beta-lactam, vancomycin, isoniazid, ethambutol, cycloserine, bacitracin. They all are the cell wall inhibitors. Mean they inhibit the synthesis of cell wall और सेल वॉल प्रिकर्सर्स. नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर हम देखें तो वी कैन सी देयर 3 ड्रग्स सच एज पोलीमिक्सन, बेसिट्रासिन एंड नियोमाइसिन. और भी ड्रग्स होती हैं, और भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एक को डिस्कस कर रहे हैं. देन देयर आर DNA रेप्लिकेशन. यू कैन सी दैट DNA रेप्लिकेशन को जो इनहिबिट कर रही हैं दे आर क्विनोलोन्स, मेट्रोनिडाजोल. देन ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास आती हैं RNA सिंथेसिस की इनहिबिशन में रेफेम्पेंसिन एंड रेफोब्यूटेन. देन ट्रांसलेशन में हमारे पास 50S एंड 30S एंटीबायोटिक्स आती हैं. 50S में हमारे पास क्लोरोमफिनाकोल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन ड्रग्स आती हैं, जबकि 30S सब यूनिट के ऊपर जो ड्रग एक्ट करती हैं उनमें हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सोजोलिडिनोन एंटीबायोटिक्स आती हैं. जब फिर हमारे पास जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं उनमें हमारे पास सल्फोनामाइड्स आती हैं, ट्राइमेथोप्रिन आती हैं, डेप्सोन आती हैं. तो हमारे पास मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रही हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बेस की. नाउ वी स्टडी ऑल दिस इनहिबिटर वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. एज़ के हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है, जबकि जो यूकैरियोट जैसे कि ह्यूमन्स हैं इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती. तो जो सेल वॉल है इज़ अ फोकस ऑफ बैक्टीरियोसिडल एजेंट्स. तो फिर हमारे पास एक प्राइम टारगेट साइट बन जाती है, और इसकी जो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है वो नहीं होती क्योंकि ह्यूमन के पास सेल वॉल नहीं होती. तो ये हमारे पास एक मेजर टारगेट है. एंड दीज इनहिबिटर्स या जो सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं दे ऑल आर बैक्टीरियोसिडल इन नेचर.
नाउ इसमें हम लोग दो क्लासेस को पढ़ेंगे, एक हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड ग्लाइकोपेप्टाइड्स। तो व्हाट आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? बीटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बीटा लैक्टम? बीटा लैक्टम ये हमारे पास एक रिंग होती है जो कि सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इनके पास भी बीटा लैक्टम रिंग होती है जो कि एक एंजाइम है, पेनिसिलिन बाइंडिंग एंजाइम। तो ये उसके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। दे बाइंड कोवलेंटली टू रेगुलेटरी एंजाइम विच आर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। हैंस नाउ व्हाट दे डज, दे ब्लॉक द क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकैन की क्रॉस लिंकिंग को जब ब्लॉक कर देंगे तो जो सेल वॉल है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। एंड दे आर बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। एंड इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आती हैं पेनिसिलिन आ जाती हैं, एम्पिसिलिन आ जाती हैं, सेलोस्पोरिन्स आ जाती हैं, कार्बापेनम्स आ जाती हैं। दे ऑल आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्लास इज ग्लाइकोपेप्टाइड्स। अब ग्लाइकोपेप्टाइड्स क्या है? दे बाइंड टू द प्रिकर्सर्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। कि सेल वॉल सिंथेसिस के जो प्रिकर्सर्स हैं, जैसे नैग हो गया, नैम हो गया, एन-एसिटाइलग्लूटामिक एसिड, एन-एसिटाइलम्यूरामिक एसिड, ये उनके साथ इंटरफेयर कर जाती हैं, जिसकी वजह से ना तो उनके वो एंजाइम्स नहीं बनते, ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं होती, तो ये उनके प्रिकर्सर के साथ जाकर अटैच कर जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल एग्जांपल आती है वो वेनकोमाइसिन की आती है। बट वेनकोमाइसिन इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, इट इज़ मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। और उसका एक मेजर रीज़न ये हो सकता है कि हमें पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसकी सेल वॉल थिक होती है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है। नेक्स्ट आप एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स है और उनके एक्शंस की और उनके टारगेट साइट्स बताई गई हैं। जैसे फास्कोमाइसिन है, ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होने देती, यानी जो नैग एंड नैम है इनकी आपस में अटैचमेंट नहीं होने देती। एंड इट इज़ आल्सो इनहिबिटर ऑफ सेल वॉल प्रिकर्सर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो साइक्लोसीरीन है। अब साइक्लोसीरीन क्या करती है, ये डी एलानिन, ये जो टर्मिनल डी एलानिन जो कि स्टेम पेप्टाइड के ऊपर होता है, इसकी इनकॉर्पोरेशन नहीं होने देती। नेक्स्ट अगर हम बेसिट्रेसन को देखें तो ये C55 लिपिड के ऊपर जाकर अटैच करती है और प्रिवेंट करती है डीफॉस्फोराइलेशन को। वेनकोमाइसिन जैसे हमने कहा कि ये टर्मिनल डी एलानिन के साथ जाकर अटैच होती है। देन फिर अगर हम देखें नेक्स्ट तो बीटा लैक्टम, एंड बीटा लैक्टम अगर हम देखें तो ये बीटा लैक्टम रिंग के साथ कंपीट करती है और पेनिसिलिन बाइंडिंग एंजाइम के साथ अटैच हो रही है। तो ये डिफरेंट एंटीबायोटिक्स थी सेल वॉल इनहिबिटर्स की, जिनके हमने साइट ऑफ एक्शंस पढ़े कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स किस किस साइट के ऊपर जाकर एक्ट कर रही है। नेक्स्ट साइट इज सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस इनहिबिटर। वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को इनहिबिट करती हैं। उसमें हमारे पास तीन मेजर हैं, वो है डेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन एंड इमिडाजोल। व्हाट डज डेप्टोमाइसिन डज? इट डिस्टर्ब द मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस। ये सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है, ये बाइंड करती है मेम्ब्रेन के साथ एंड कॉज रैपिड डीपोलराइजेशन। नाउ व्हाट हैपेंस, देयर इज अ लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि उसका जो पोटेंशियल होता है, हमें पता है यहाँ पर पोटेंशियल्स होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस की वजह से डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं, वोल्टेज होती है। तो व्हाट हैपन, देयर इज अ लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल which lead to inhibition of protein synthesis, DNA and RNA synthesis. And what happens, which it results in the death of bacterial cell. Polymyxin, it disturbs the cell membrane को disturb करती है। and now what happens, it results in the release of molecules and ions. ये उन आयंस और मॉलिक्यूल की रिलीज करा देती है जो कि सेल के सर्वाइवल में रोल प्ले करते हैं, एसेंशियल हैं। एंड इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट इज़ नॉट स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब्स। इट इज़ आल्सो, अब ये जितनी सेल मेम्ब्रेन है ये स्टार्टिंग में नहीं दी जाती हैं, तब दी जाती हैं जबकि जो माइक्रोब है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा हो, इसलिए क्योंकि इनकी जो सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। तो सेलुलर टॉक्सिसिटी इश्यूज़ की वजह से ये ज़्यादातर रिकमेंड नहीं की जाती। दैन इमिडाजोल, अब इमिडाजोल क्या, ये एंटी फंगल्स हैं, इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, ठीक है, जो कि एंटी फंगल है, जो कि क्या करती हैं 14 डीमिथाइलेशन ऑफ
लेंस्ट्रोल, क्योंकि जो लेंस्ट्रोल की फॉर्मेशन है एर्गोस्टेरॉल, ये इसेंशियल कंपोनेंट है फंजाई की सेल मेम्ब्रेन में। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने नहीं देती, उसको इनहिबिट कर देती हैं। दे इनहिबिट 14 डीमिथाइलेशन ऑफ लेनोस्टेरॉल टू ergosterol. So these are the cell membrane function inhibitors. Now we talk about protein synthesis inhibitors. Protein synthesis inhibitor हमें पता है हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस स्टेजेस होती हैं, इनिशिएशन होती है, लॉन्गेशन होती है, ट्रांसलोकेशन होती है, टर्मिनेशन होती है। तो जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाकर एक्ट करती हैं। और हमें यह भी पता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हो रही होती है राइबोसोम के अंदर, एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैव डिफरेंट राइबोसोम। सो इट इज़ आल्सो अ सिलेक्टिव टारगेट साइट फॉर एंटी बैक्टीरियल, बिकॉज के इनकी जो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है ह्यूमन से। तो ये भी हमारे पास जिस सेल वॉल की तरह एक अच्छा एक टारगेट साइट होता है जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स आती हैं, वो ड्रग जो कि 50S के ऊपर काम करती हैं, 50S सब यूनिट के ऊपर, एंड दो ड्रग विच एक्ट ऑन 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दो ड्रग विच एक्ट ऑन 50S. They are MLS group, which stand for macrolide, lincosamide and streptogramine group. मैक्रोलाइड में एग्जांपल हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन की आ जाती है, जिथ्रो की आ जाती है, क्लेथ्रो की आ जाती है, क्लेंडामाइसिन की में हमारे पास लिनकोसामाइड आ जाती है। फिर स्ट्रेप्टोग्रामिन में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डेल्फोप्रिस्टिन की एग्जांपल आ जाती है। व्हाट डज दे डू, दे एक्ट आउट 23S यूनिट ऑफ 50S राइबोसोमल यूनिट, कि 50S का जो सब यूनिट है 23S ये उसके ऊपर जाकर एक्ट करती हैं। देन देयर कीटोलाइड, कीटोलाइड वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डेरिवेटिव्स हैं मैक्रोलाइड की, एंड दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट दोज माइक्रोब विच आर मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस। अगर एक माइक्रोब है जो कि मैक्रोलाइड को रेजिस्ट कर रहा है तो उसके लिए फिर हम उनको कीटोलाइड रिकमेंड करते हैं। देन देयर इज आग्राजोल लिडिनोन्स, इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आती है लेंजोलेट की आती है जो कि सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, एंड इट वर्क्स ऑन द फर्स्ट स्टेप, यानी कि ये इनिशिएशन के ऊपर ऐड करती है। इट बाइंड्स टू 23S पोर्शन ऑफ 50S राइबोसोमल सब यूनिट एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसफर RNA फ्रॉम एंटरिंग द साइट इन इट्स सेपरेशन, यानी कि एक्टिवेशन कम्प्लेक्स नहीं होने देती। देन देयर अमाइनोग्लाइकोसाइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड हमारे पास आती हैं, इसमें हमारे पास वेंकोमाइसिन, एमिकासिन वगैरह इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, एंड दे बाइंड टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट, एंड दे आल्सो ब्लॉक्स द इनिशिएशन कम्प्लेक्स, यानी कि ये एक्ट करती हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर। और दे आर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के ऊपर इफेक्टिव हैं, बट दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया आर इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट टू अमाइनोग्लाइकोसाइड बिकॉज दे नीड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स फॉर देयर एक्शन। तो ग्राम नेगेटिव को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये जो ग्राम नेगेटिव माइक्रोब होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। देन tetracycline just like aminoglycoside also act bind through 30S ribosomal subunit and inhibits the binding of incoming transfer RNA and arrests the peptide chain elongation. It is also a broad spectrum antibiotic and effective against gram-positive, gram-negative chlamydia and rickettsia species. Then there is chloramphenicol. It acts on 50S subunit and it inhibits the addition of new amino acid on the peptide chain. So these are the protein synthesis. Now we have DNA and RNA synthesis inhibitors. First of all, we talk about RNA synthesis inhibitor. So this is the rifampicin. It binds to DNA dependent RNA polymerase, यानी कि RNA की सिंथेसिस के लिए जो कि एक एंजाइम है RNA polymerase उसके साथ जाकर बाइंड करती हैं, जिसकी वजह से RNA की या मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन नहीं होती। It is more effective against gram positive than gram negative because ये gram positive के against most effective है, gram negative के against इतना effective नहीं है because it cannot penetrate the outer membrane। और हमें पता है कि जो outer membrane है ये extra layers होती हैं gram negative के अंदर, तो क्योंकि ये उसके अंदर bind नहीं कर सकती क्योंकि because it is hydrophobic in nature, so it can penetrate the outer membrane of gram negative bacteria. Next one is metronidazole. It is both antiparasitic and antibacterial, and also it is both DNA inhibitor as well as anti-metabolic inhibitor.
It results in breakage of DNA strands. ठीक है, ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जो हमें पता है कि डबल 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उसकी ब्रेकेज में उसकी ब्रेकेज कर देती है. ठीक है. एंड दिस ड्रग इज एक्टिव अगेंस्ट रिड्यूस कंडीशन. मतलब इट इज़ मोस्ट पोटेंट अगेंस्ट एनरोबिक बैक्टीरिया, कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, जैसे मैंने कहा था अमाइनो वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, जबकि जो मेट्रोनिडाज़ोल है ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करती. दैट्स व्हाई इट इज़ मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट और मोस्ट पोटेंट अगेंस्ट एनरोबिक बैक्टीरिया. देन देयर इज fluoroquinolone. They are the derivatives of nalidixic acid, and their example is ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, and in this antibiotic levofloxacin is called queen of quinolones. Actually it interferes with DNA garase enzyme. DNA garase enzyme उसको बैक्टीरिया के अंदर कहते हैं, जबकि ह्यूमन के अंदर उसको टोपोआइसोमरेज 4 कहते हैं. तो it binds and interferes with DNA garase enzyme which involved in the regulation of bacterial DNA supercoiling, and it is also broad spectrum. Then we have inhibitors of metabolic processes, and they include sulfonamides, trimethoprim, nitrofurantoin, and isoniazid. Sulfonamide targets and binds the enzyme dihydropetrate synthase, which is important in folic acid pathway, and it is effective against many gram-positive than gram-negative bacteria. Trimethoprim is also disturb folic acid pathway, but here the target enzyme is different. Sulfonamide have dihydropetrate synthase, while trimethoprim has dihydrofolate reductase. It is also effective against gram-positive and it is also effective many gram-positive than gram-negative bacteria. एंड एक्चुअली जो सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिन में है, ये कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं ताकि अगर बैक्टीरिया एक को रेजिस्ट करे तो दूसरे को रेजिस्ट ना कर सके. देन देयर द नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन. इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट दोज विच आर नॉर्मली कॉज UTIs. And isoniazid, as we know, it is the first drug of choice against Mycobacterium tuberculosis because it inhibits its cell wall, or we can say that it inhibits mycolic acid biosynthesis in Mycobacterium tuberculosis. So that's all from today's lecture. Hope you guys now understand what are the antibiotics, where do these antibiotics come from, what are the criteria of classify these microbes, and what are the and then we study about different inhibitors, which are cell wall, cell membrane, protein inhibitor, DNA inhibitors, and their metabolic processes. So that's all from today. Thank you.